چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایران امریکہ اسرائیل میں جنگ بندی پر ثالثی کا کردار تاریخی ہے۔ ایران پر حملہ اسلامی ممالک پر حملہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کا پرامن حل نکالا جائے۔ پوری قوم فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار کو سراہتی ہے۔ ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹاؤن میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب میں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کا کہنا تھا کہ ایران پر حملے کے بعد امت مسلمہ غم کی کیفیت میں ہے۔ مسلم دنیا کو جذبات نہیں بلکہ دانشمندی کے ساتھ فیصلے کرنا ہوں گے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ سمیت دیگر اسلامی ممالک جنگ کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہیں۔ داخلی استحکام کے بغیر بیرونی خطرات کا مقابلہ ممکن نہیں۔ محتمم ادارہ منہاج الحسین مولانا محمد حسین اکبر نے کہا، ایران پر حملہ دراصل پورے خطے کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے۔ دشمن قوتیں سعودی عرب، پاکستان اور ایران کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ اس موقع پر دیگر مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ فرقہ واریت پھیلانے کی کوششیں ناکام بنانا ہوں گی اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور ناظرین، اس جنگی صورتحال میں جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے متعلق متنازع بیانات بھی سامنے آئے ہیں۔ لاہور میں ایف پی سی سی آئی رہنماؤں کی شدید مذمت، جبکہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ملکی معیشت کی شرح قرار دے دیا ہے۔ ایف پی سی سی رہنماؤں کا اس متعلق کہنا ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے تمام پروٹوکولز پر عمل ہو رہا ہے، اس اسٹیٹس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ رپورٹ کریں گے زاہد عابد۔ لاہور میں ایف پی سی سی آئی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز کا کہنا تھا کہ جی ایس پی پلس پاکستانی برآمدات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ سٹیٹس ختم ہوا تو 10 سے 12% ڈیوٹی عائد ہو جائے گی۔ ریاست کے خلاف معاشی ہتھیار استعمال کرنا ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ یورپی یونین پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے۔ ہماری کل عالمی برآمدات کا تقریباً 25 سے 30% اس خطے سے وابستہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ سٹیٹس ختم ہوا تو ہماری مصنوعات پر فوری طور پر 10 سے 12% ڈیوٹی عائد ہو جائے گی، جس سے ملک کو سالانہ 8 سے 9 ارب ڈالر کا براہ راست نقصان ہوگا۔ ایف پی سی سی آئی گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر کہتے ہیں، 2014 میں ملنے والا جی ایس پی پلس سٹیٹس 2027 تک جاری ہے۔ اس کے تحت 27 پروٹوکولز پر عمل درآمد ضروری ہے۔ پاکستان کا عمل درآمد بھارت اور بنگلہ دیش سے بہتر ہے۔ 2014 میں ہمارے ملک کو یہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ملا 2027 تک۔ اس میں ڈفرینٹ قسم کے ان کے 27 قسم کے ڈفرینٹ کنونشنز ہیں جس کو آپ نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ 2014 میں جو ہمارے ملک کی ایکسپورٹ تھی ای یو کنٹریز کو، وہ 2.5 بلین ڈالر کی تھی۔ 2014 سے لے کے آج تک ہم 8.8 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پہ آ چکے ہیں۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے کہا کہ جی ایس پی پلس پروگرام سے برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا، ملکی معیشت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دیگر رہنماؤں سمیت علی عمران اور علی حسام نے بھی متنازع بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ طبی شعبے میں غفلت پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے بڑا ایکشن بھی تیار ہے۔ لاہور کے لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں مبینہ سنگین کوتاہی پر ایم ایس اور سینئر ڈاکٹر سمیت متعدد اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں، جبکہ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کا اس متعلق کہنا ہے کہ اسپتالوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال لاہور میں خواتین مریضوں کی آپریشن کے دوران ویڈیو وائرل کرنے کا معاملہ۔ حکومت پنجاب کی جانب سے سخت کارروائی۔ ایم ایس ڈاکٹر فرحہ انعام اور ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر عظمہ حسین کو بھی معطل کر دیا گیا۔ 5 پی جی آرز اور 2 چارج نرسز بھی معطل، جن میں اقرا زاہد، فوزیہ رشید اور کک حسیب الرؤف کے خلاف پیڈا ایکٹ کارروائی جاری۔ صورتحال پر وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیع کا کہنا ہے، ہسپتالوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ جہاں بھی غفلت سامنے آئے گی وہاں فوری اور سخت ایکشن لیا جائے گا۔ چیئرمین لیڈی ولنگٹن ہسپتال عمر سہیل ضیاء بٹ نے ہسپتال میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ مریضوں کی پرائیویسی اور ان کی سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی کو بھی مریضوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ یہ ڈاکٹر جو ہے
ये बड़ा मुकद्दस पेशा है, इनकी बड़ी इज्जत है, मगर ये किसी को राइट नहीं देता कि आप इस तरह की बेहूदगी जो है वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर करें, जहाँ पे 2 बंदों की या आगे आने वाले 2 बच्चों की या 3 बच्चों की जो है वो ज़िंदगी का सवाल है, और वहाँ पे आप मीडिया लगा के जो है वो एक रेस करा रहे हैं। ये फार्मूला 1 की रेसिंग नहीं हो रही है, अस्पताल है, और किसी को जो है वो इस तरीके से माफ़ नहीं किया जाएगा। कोई स्केप बोर्ड ही होगा, जो इंडिविजुअल इसमें शामिल है उसे हम इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। महकमा सेहत ने एक और इकदाम में WMO डॉक्टर इकरा हफीज को महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डॉक्टर आमना रशीद की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी फौरी मुअत्तल कर दी गई। कैमरामैन बाबर याज के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। सूबादार हुकूमत में पतंगबाजी का खूनी खेल ना रोका जा सका। थाना सांदा की हदूद में वाक़ राजगढ़ में शहरी की गर्दन पर डोर फिर गई है। लाहौर न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आलम नखड़ियार को क्लोज लाइन कर दिया गया है। शहरी मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था कि पतंग की डोर उसकी गर्दन पर फिर गई। शहरी की गर्दन पर 8 टांके लगे हैं। फौरी तिब्बी इमदाद मिलने से शहरी की जान बच गई, जबकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान रसा ने लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आलम नखड़ियार को क्लोज लाइन कर दिया है। इंस्पेक्टर आलम नखड़ियार को क्लोज टू हेड क्वार्टर रिपोर्ट करने की भी हिदायत कर दी गई है। जबकि आपको बताएंगे सीटीडी पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी हैं। खुफिया इत्तला पर मुश्तमिल ऑपरेशन में 36 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर दिया गया है और दहशतगर्द मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हिरास फैलाना चाहते थे। दहशतगर्द किन किन इलाकों से गिरफ्तार हुए हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पंजाब में दहशत गर्दी के खदशात। सीटीडी पंजाब के 1 माह के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 366 ऑपरेशन, 36 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक खतरनाक दहशत गर्दों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई लाहौर, कसूर, जहलम, चकवाल, ओकाड़ा, खानेवाल, रावलपिंडी, चिन्योट, टोबा टेकसिंग, राजनपुर, सियालकोट, झंग, अटक और साहिवाल में की गई। दहशत गर्दों की शनाख्त निसार अहमद, बाचा खान, अनस, खिजर, गजनफर, सब्ज अली, सरदार खान और फैज वगैरह के नाम से हुई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फैसलाबाद और जहलम से फितनल खवारिज के 2 खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दों से 5 IED बम, 34 डेटोनेटर, 61 फुट हिफाजती फ्यूज वायर और नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार दहशतगर्दों से नामालूम मकाम पर मजीद तफ्तीश जारी है। 1 माह के दौरान 7,799 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1,261 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में माहौलियाती आगाही को फ़रोग़ देने के लिए अर्तावा बनाया गया। 500 से ज़ायद मुकामात पर फालतू रोशनियाँ गुल कर दी गई, जबकि कमिश्नर और DC ऑफिस और दीगर डिपार्टमेंट में भी लाइट्स 1 घंटे बंद रही। ये रिपोर्ट देखिए। ज़मीन से मोहब्बत के इजहार के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में अर्थ आवर मनाया गया। लाहौर समेत सूबे भर में 500 से ज़ायद मुकामात पर फालतू रोशनियां गुल कर दी गईं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत दीगर दफातर और मरकजी शाहराहों की भी फालतू लाइट्स 1 घंटे तक बंद रहीं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने तमाम ऑफिस और ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स बंद करके ड्यूटी अंजाम दी। CTO डॉक्टर अतर वहीद भी शहर की मसरूफ शाहरा के सिग्नल पर पहुंचे और शहरियों को आगाही दी। CTO ने कहा कि तवानाई की बचत करके हम शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम कर सकते हैं। शहरियों में एक अवेयरनेस क्रिएट करना, एनर्जी को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ख़ास तौर पे इसकी ज़रूरत कॉन्फ्लिक्ट के दिनों में। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने है, रिसेशन है, एनर्जी का क्राइसिस है, इसकी अहमियत इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो गई है और गवर्नमेंट की तरफ से तमाम के तमाम सरकारी ऑफिसेज इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब भर के तमाम रेस्क्यू कंट्रोल रूम्स और स्टेशंस में भी तमाम फालतू लाइट्स 1 घंटे तक बंद रखी गईं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि अर्थ आवर में शिरकत करके हम माहौल की हिफाजत की आगाही में किरदार अदा कर सकते हैं। उधर वासा हेड ऑफिस लाहौर में भी अर्थ आवर के मौके पर लाइट्स 1 घंटे तक ऑफ रहीं। MD वासा गुफरान अहमद का कहना था कि अर्थ आवर हमें माहौलियाती जिम्मेदारी निभाने का अमली पैगाम देता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब हनीफ नवाज की खुसूसी हिदायत पर महकमा सोशल वेलफेयर में अर्थ आवर मनाया गया। इस मौके पर तमाम दिफाती की लाइट्स रात 1 घंटे तक बंद रखी गई, जबकि अर्थ आवर के मौके पर महकमा सोशल वेलफेयर की तमाम दिफाती की लाइट्स रात 8:30 से 9:30 बजे तक बंद रखी गई। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत बट का इस मुतालिक कहना था कि अर्थ आवर मनाने का बुनियादी मकसद अवाम में तवानाई के बचाव के बारे में आगाही पैदा करना है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इज्तिमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है।
वज़ीर आला पंजाब की मुहिम को कामयाब बनाने पर NGOs, अवाम और मीडिया के बेहद मशहूर हैं। शहर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब तक सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा 31.5, सकियां 28, जौहर टाउन 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद में 23, गुलशन रावी 20.5 मिलीमीटर और गुलबर्ग 12, जबकि पानी वाला तालाब में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं शहर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह ताजपुरा में 31.5 मिलीमीटर, सकिया में 28, जौहर टाउन में 30.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। समनाबाद में 23, गुलशन रावी 20.5 और गुलबर्ग में 12, जबकि पानी वाला तालाब 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शहर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक सबसे ज़्यादा 36 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा में 31.5 मिलीमीटर, सकिया में 28, जौहर टाउन में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और समनाबाद में 23, गुलशन रावी में 20.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग में 12 और पानी वाला तालाब में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और नाज़रीन, अहम खबर यह है कि अहम अद्वियात की कीमतों में 10 से 100% का होशरुबा इजाफा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने जाम बल्क मरीजों का इलाज मुआलजा भी मुश्किल बना दिया है। एंटीबायोटिक, पेन किलर, शुगर, ब्लड प्रेशर और मैदे की अद्वियात इंतहाई महंगी होने लगी हैं, जबकि आलमी हालात की आड़ में फार्मास्यूटिकल कंपनीज की लूटमार तेज़ हो चुकी है। आलमी हालात की आड़ में फार्मास्यूटिकल कंपनियों की लूट मार तेज। कई अहम अद्वियात की कीमतों में 10 से 100% का होशरुबा इजाफा। मुल्क भर में एंटीबायोटिक, पेन किलर, शुगर, ब्लड प्रेशर और मैदे की अद्वियात इंतहाई महंगी अद्वियात के बायस गरीब मरीज इलाज अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि अद्वियात महंगी होने से उनका इस्तेमाल करना मुश्किल होता जा रहा है। शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उनके रेट वगैरह काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, जिससे कस्टमर वगैरह को भी मेडिसिन खरीदने में मुश्किल होती है। मेडिसिन बहुत महंगी हो चुकी है, आवाम जो है ना बड़ी मुश्किलात फेस कर रही है। जो मेडिसिन पहले 400-500 की मिलती थी, अब उसका वो रेट इतना अप हुआ है, वो 1000-1200 की मिल रही है। बहुत महंगी दवाइयाँ हैं, पैसे कुछ लेके आए, आगे से ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो परेशान ही हैं। गरीब आदमी दवाइयों पे लगा हुआ, दवाइयाँ सस्ती नहीं हो रही, उनको यही दवाई सस्ती करे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अद्वियात के मुख्तलिफ बैचेस में कीमतों का फर्क ड्रग प्राइसिंग सिस्टम पर सवालिया निशान है, जिससे संगीन अमराज में मुब्तला अफराद ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफे के रुझान पर काबू न पाया गया तो मुल्क भर में इलाज मुआवजे की दस्तयाबी बहरान की शक्ल अख्तियार कर सकती है।